محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، یہ شعبان کے مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں اور ایک دو روز میں 3 روز میں ہم ایک ایسے مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں کہ جو مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کریم کو مکمل طور پر نازل کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا کی شکل میں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ کس مہینے میں؟ یہی مہینہ جو آنے والا ہے۔ یہ وہ mہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین ہر رات بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کا ہم استقبال کرنے والے ہیں، مطلب اس مہینے کو ہم پانے والے ہیں۔ اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے دلوں میں جاگزی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں آپ لوگ یہاں سیکھیں، اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم غور کریں۔ کیا غور کریں؟ پچھلا رمضان آنے والا تھا، ہم اس کی تیاری میں تھے، اس کے استقبال میں تھے۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ وقت، یہ مہینہ گزر گیا، بلکہ کہ یہ سال گزر گیا اور ہمیں احساس تک نہ ہوا، اور پھر کیا ہے، دوسرا رمضان کا مہینہ آ گیا۔ ایک مومن، ایک مسلمان ان گزرتے ہوئے ایام اور استقبال رمضان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے چند منٹ کے لیے، چند ساعت کے لیے، چند لمحے کے لیے غور و فکر کرتا ہے۔ کیا غور و فکر کرتا ہے؟ ارے بھائی، ابھی پچھلا رمضان ہم پا رہے تھے اور دیکھیے ابھی دوسرا رمضان آ گیا، کب گزر گیا۔ ایسے ہی ایک دن ہماری موت کا وقت متعین ہے۔ یاد رکھو، کیا ہے؟ ہماری موت کا وقت متعین ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اور فرشتہ آپ کو دیکھتا ہے، رجسٹر دیکھتا ہے کہ اس کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ کے سروں پر وہ 24 گھنٹے سوار رہتا ہے۔ اگر آپ کی موت مسجد میں لکھی ہے تو وہی مسجد میں آپ کی روح قبض کرے گا۔ اللہ نہ کرے بہت سے بدبختوں کی روحیں پائخانے میں نکلتی ہیں، ٹوائلٹ میں نکلتی ہیں۔ اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ فرشتہ وہاں بھی حاضر رہتا ہے، وقت ہوا فوراً روح نکال لے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے کہا جب کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو لمحہ بھر نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ ہاسپٹل میں لکھا ہے وہاں آپ کی موت ہوگی، کس بیڈ پہ لکھا ہے وہاں فرشتہ موجود رہے گا۔ یہی نہیں،
اگر آپ کی موت سمندر کے اندر لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دے گا کہ آپ سواری کر کے سمندر میں جائیے، وہاں فرشتہ پہنچ کر کے آپ کی روح قبض کرے گا۔ ابھی کچھ سالوں پہلے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پنڈبی میں ایک باپ اور ایک بیٹا کروڑوں روپے خرچ کر کے سمندر زیر زمین کے نیچے، انڈر دا ورلڈ، زمین کے نیچے وہ گئے۔ کس لیے گئے؟ سیر و تفریح کے لیے۔ اس لیے نہیں گئے تھے سیر و تفریح کے لیے، گئے اس لیے تھے کہ ان کی موت وہی مقدر تھی۔ اللہ نے پیسہ اس لیے دیا تھا کہ لو بیٹے پیسہ لو، برباد کرنا ہو کرو، تمہاری موت تو زمین کے نیچے لکھی ہوئی ہے، زیر زمین لکھی ہوئی ہے۔ نیچے گئے اور موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کر لیا۔ تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے، سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اتنے سرعت کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ آخرت کے لیے کیا کیا؟ دنیا کے لیے تو سب مرتے ہیں، ایک کے بجائے 2 دکانیں کرتے ہیں، 2 کے بجائے 3 دکانیں کرتے ہیں، 4 دکانیں کرتے ہیں، گودام بناتے ہیں، نہ جانے تجارت اور بزنس کے کیا کیا مواقع وہ استعمال کرتے ہیں، وسائل استعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن آخرت کی تیاری کے لیے جو ہے قبر میں اپنے آپ کو راحت و سکون پہنچانے کے لیے، جو قیامت کا دن ہوگا، اس وقت کی جو ہولناکی ہوگی، اس سے بچنے کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے انسان جب مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات ایک بات یاد رکھیے، جمعہ کے دن جب امام منبر پر آ جائے اور کوئی کسی کو اشارہ بھی کرتا ہے تو جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے اس چیز کو۔ اس لیے بہت غور و فکر کے ساتھ اگر ثواب لینی ہے تو بیٹھیے۔ امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد اگر کوئی اشارے سے بھی کسی کو کچھ کہتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے فقط لغوتا، اس نے لغو کام کیا، خراب کام کیا، اور جو ثواب ہوتا ہے 100% کا پتہ نہیں کتنا % ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن عام جو جلسے ہوتے ہیں، عام جو پروگرامز ہوتے ہیں، یہ جمعہ کا دن اس سے کیا ہے؟ مختلف ہوتا ہے۔ آپ دھیان سے امام جو آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہے اس کے سامنے دھیان سے بیٹھیے، اپنے اجر و ثواب کو ضائع مت کیجیے بھائی، ایک وقت ملا ہے آپ کو، پتہ نہیں آئندہ وقت ملے کہ نہ ملے، تو اس لیے آپ حضرات دھیان سے بیٹھیے جمعہ کے دن۔ تو میں کیا بتلا رہا تھا، انسان جب مر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، 3 چیزیں، اہلہ ومالہ وعملہ۔ انسان جب مر جاتا ہے تو قبر تک 3 چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اس کے اہل و عیال، دوست و احباب، اس کا مال، اس کا عمل۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں قبر میں اس کو اتار کر کے، مال، چارپائی، یہ بھی مال ہے اس کا، اہل و عیال بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہیں صرف جنازے میں اس لیے شرکت کرتے ہیں یار وہ بڑا آدمی تھا، اس کے بچے کیا کہیں گے، کہتے نہیں کہتے، اس کے جنازے میں چلو شریک ہوتے ہیں، تو لوگ جاتے ہیں اس کے مال کو دیکھ کر کے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا 2 چیزیں واپس آ جاتے ہیں، اہل و عیال، دوست و احباب، جس کے ساتھ وہ رنگ رلیاں مناتا ہے، پروگرامیں کرتا تھا، مشورے کرتا تھا، گھومتا تھا، ٹہلتا تھا، جو کہتے تھے ہم آپ کے ہمیشہ ساتھ ہیں، ہم آپ کا ہمیشہ ساتھ دیں گے، غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں، خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، وہی دوست و احباب، وہی بچے جن کے لیے وہ کماتا تھا، اس کو قبر میں اتار دیں گے، واپس آ جائیں گے۔ کیا بچے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 لوگ تو واپس آ جائیں گے، لیکن ایک چیز باقی رہے گی، کیا ہے؟ اس کا عمل ہے، کتنا عمل کیا، دین کی خاطر کتنا عمل کیا، ایمان کے لیے کتنا عمل کیا، اسلام کے لیے کتنا عمل کیا۔ اللہ نے جو مواقع دیے تھے، جمعہ کا دن تھا، اللہ نے جو مواقع دیے تھے، حج کی سعادت تھی، عمرے کی سعادت تھی، اللہ نے جو مواقع دیے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اللہ نے جو مواقع دیے تھے، محرم الحرام کے ایام تھے، اللہ نے جو مواقع دیے تھے، عشر ذی الحجہ کے 10 ابتدائی ایام تھے، اس میں کتنا اس نے عمل کیا۔ اللہ نے جو مواقع دیے تھے، 5 وقت کی نمازیں تھی، کتنا اس نے اس پر عمل کیا۔ اللہ نے جو اس کو مال دیا تھا صدقہ خیرات کے لیے، کتنا اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا۔ اللہ نے جو مال دیا تھا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھا، نصاب کو پہنچ گیا تھا، کتنا اس نے زکوٰۃ ادا کیا اور اس پر عمل کیا۔ اللہ نے جو اس کو تندرستی دی تھی، طاقت دی تھی، اس کا کتنا استعمال دین کی سربلندی کے لیے،
लोगों की मदद के लिए, लोगों की आराम व आशाइश के लिए, लोगों की राहत के लिए, बेवाओं को की मदद के लिए, यतीमों की किफालत के लिए कितना उसने इस्तेमाल किया। उसने इस्तेमाल किया तो किसके लिए? साजिशें करने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए आई एम, मैं ही सिर्फ हूं और कोई नहीं है, मैं ही सिर्फ हूं। याद रखो, अगर ये चीजें आपने की है तो आपके कब्र की जो इब्तिदा होने वाली है बड़ी भयानक होने वाली है। कब्र के अंदर एक खूबसूरत शक्ल का फरिश्ता आएगा, बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत होगा, आंखें अच्छी, बहुत खूबसूरत होगा, खुशबू में लथपथ होगा, महक फूट रहेगी उससे। इंसान कहेगा भाई तुम कौन हो? कहेगा देखो मैं तुम्हारा अमल हूं, तुम दुनिया में जो नेक अमल करते थे यही इसकी शक्ल है। कहेगा हाँ, तुम्हारा चेहरा तो देखकर ऐसा ही बताता है कि तुम कोई खुशखबरी सुनाने वाले हो। लेकिन वही जहां इंसान ने अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह के रास्ते के अलावा में उसने कुर्बान कर दिया, लगा दिया, खर्च कर दिया, सेहत को कहीं और गंवा दिया, पैसे को कहीं और गंवा दिया, अल्लाह ने जो सोर्स और पावर दिया था कहीं और गंवा दिया। याद रखो, अल्लाह ने जो औकात दिए थे, 5 वक्त की नमाजें फर्ज की थी, 5 वक्त अल्लाह ने अपने से मुलाकात करने के लिए आपको एक मौका दिया था, आपने इसको गंवा दिया। अल्लाह ने ताकत दी थी पैसे की सूरत में, आप हज करो, आपने हज नहीं किया। अल्लाह ने ताकत दी थी बेवाओं यतीमों पर खर्च करने की, इस्लाम के लिए खर्च करने की, आपने नहीं किया। आपने सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी एगो के लिए, अपनी नामोरी के लिए, अपनी शोहरत के लिए अगर आपने इन चीजों का इस्तेमाल किया, हदीस के अंदर आता है, इसी हदीस के अंदर एक बहुत ही बदसूरत शक्ल का इंसान यानी फरिश्ता आएगा, बदबू फूट रही होगी उसके जिस्म से, वो जो कब्र के अंदर बंदा होगा, कहेगा भाई तुम कौन हो, डर लगता है देखते हुए। वो कहेगा कि मैं तुम्हारा अमल हूं जो तुम दुनिया में करते थे, तुम्हें मैं क्या है, गम की खबर सुनाने आया हूं, खुशखबरी सुनाने नहीं आया हूं। वो कहेगा हाँ, तुम्हारी सूरत देख करके तो ऐसा ही लगता है कि तुम गम की खबर सुनाने वाले आए हो, अजाब की जो है खबर सुनाने वाले आए हो। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हो कि दुनियावी जिंदगी आपकी अच्छे से गुजरे, कब्र की जिंदगी अच्छे से गुजरे, आखिरत की जिंदगी अच्छे से गुजरे, तो याद रखो जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, जो अल्लाह ने औकात दिए हैं, उनको अल्लाह के रास्ते में लगाओ। और याद रखो, एक बात मैं पॉइंट की बताता हूं, गौर फिक्र के साथ उसको सुनो। अगर आप मालदार हो तो आपकी सबसे अहम इबादत क्या है? अपने पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अगर आप इल्म वाले हो तो याद रखो, आपकी सबसे अहम इबादत यह है अपने इल्म के जरिए से लोगों को फायदा उठाओ। अगर आप ताकत वाले हो तो याद रखो, अहम इबादत आपके लिए है अपनी ताकत के जरिए कौम को फायदा पहुंचाओ। अगर आपके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बीवी बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो याद रखो एक बीवी के लिए 5 वक्ता नमाजों के बाद सबसे अहम इबादत यह है अपने शौहर की खिदमत करे, अपने बाल बच्चों की खिदमत करे, अपने शौहर को सुकून दे, बाल बच्चों की तरबियत करे। अगर आप शौहर हो तो याद रखो सबसे अहम इबादत फराइज के बाद आपके ऊपर यह है अपने बच्चों की किफालत करो, बीवी को खिलाओ पहनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ पहनाओ। इस तरह इंसान के पास अल्लाह की जो नेमतें वाफिर मकदार में है उसको सबसे पहले खर्च करना जरूरी है। ये रमजान का महीना जो आ रहा है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये गौर व फिक्र करेंगे अमल के लिए कि देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछला रमजान दिया था हमें, इतनी तेजी के साथ गुजर गया, पता ही नहीं चला हमें, ये भी गुजर जाएगा ऐसे। दूसरी चीज आप ये गौर करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम कितने खुश नसीब बंदे हैं कि पिछले साल रमजान में कितने ऐसे लोग थे जो हाजिर थे, आज हमारी नजरों से गायब। अल्लाह ने एक मौका और दिया है हमें इबादत करने का, अल्लाह को खुश करने का, गुनाहों को माफ कराने का, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों में महबूब होने का अल्लाह ने एक मौका और दिया है। इसी तरीके से इंसान को, एक मुसलमान को इस रमजान के महीने को खुश दिली के साथ, दिल के अच्छाई के साथ खुश होकर के कबूल करना चाहिए। वाह, अब तो एक महीना रमजान का और मिल रहा है, हम इसमें खूब अल्लाह की इबादतें करेंगे, खूब सदका खैरात करेंगे, खूब कुरान करीम की तिलावत करेंगे, खूब हम नेकियां इसके अंदर करेंगे, कुरान करीम में गौर व फिक्र करेंगे, तरावी की नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, इफ्तार करेंगे, सहरी खाएंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे।
इंसान के दिल के अंदर क्या है, खुशी होनी चाहिए। एक मोमिन, एक मुसलमान इबादत की घड़ियों को, जो फजाइल के लम्हात है उनको, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दी हुई नेमतों को, दी हुई इबादत के मौके को बड़ी ही खुशदिली के साथ, बड़ी ही खुशी और मसरत के साथ, फरहत व इंबिसात के साथ वो कबूल करता है, उस पर अमल करता है कि वाह अब तो एक महीना और मिलने वाला है, हम अल्लाह की खूब इबादतें करेंगे। ऐसा नहीं जो बाज हजरात करते हैं, अरे यार अब तो कल से रमजान होगा, न खा पाएंगे, न पी पाएंगे, न दोस्तों के साथ घूम पाएंगे, न सिगरेट पी पाएंगे, न खैनी और तंबाकू खा पाएंगे, न जाने क्या क्या नहीं कर पाएंगे, अरे यार जल्दी से खत्म हो जाता तो अच्छा रहता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके दिल के अंदर कराहत है, अगर आप रमजान से कराहत महसूस करते हैं, नफरत महसूस करते हैं, और आप सोचते हैं कि रमजान आपके ऊपर एक बोझ है, एक वबाल है, तो याद रखिए बाद उलमा ने कहा है आप क्या है, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे अगर आप इस तरह करते हैं। तो इस तरह इंसान को नहीं करना। खुशी के साथ, अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ, अल्लाह का शुक्र करते हुए कि अल्लाह ने रमजान का एक मुबारक महीना मुझे और इनायत फरमाया है। ये खुशदिली के साथ एक मोमिन और मुसलमान का तरीका होता है, एक वतीरा होता है। मुसलमान इस तरह क्या है, रमजान का इस्तकबाल करता है। जब रमजान का चांद देखे, देखने की कोशिश करे। इस्तकबाल रमजान का एक गोशा ये भी है कि जब चांद देखे, चांद देखने का एहतमाम करे, चांद देखने का एहतमाम करे, देखे कि हाँ चांद निकल गया, तो क्या कहे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। चांद देखने की दुआ पढ़े। उसके बाद एक मुसलमान रमजान का इस्तकबाल किस तरह करे। चांद देखने के बाद इंसान को अपने आप में मुकम्मल चेंजिंग लानी चाहिए। अगर वो और महीनों में दुकान ज्यादा करता था, कारोबार ज्यादा करता था, इस महीने में कम करने की कोशिश करे। इस महीने में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत ज्यादा करने की कोशिश करे। हमारे यहाँ हमारे मुसलमान भाइयों में अक्सर ये होता है, रमजान का महीना जिस कदर करीब होता जाता है, गुजरता जाता है, वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या है, बिजनेस में लग जाते हैं, तिजारत में लग जाते हैं, कारोबार में लग जाते हैं। कहते हैं ये एक महीना क्या है, कमाने का। हालांकि ये महीना ज्यादा इबादत करने का। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कारोबार छोड़ दो, कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा इस महीने में अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करो, अल्लाह के करीब होने की कोशिश करो। इसी तरीके से इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खास नमाज जमात के साथ हमारे लिए मशरू किया है, जिसको हम तरावी की नमाज कहते हैं। उसको हम पढ़ने का एहतमाम करें। उसमें क्या है, इमाम जब कुरान पढ़े सुने, उसके बाद अगर आपकी मसाजिद में दुरूस का एहतमाम है, फजर के बाद दुरूस का एहतमाम है, तरावी के बाद उसको सुनने की कोशिश करें। उसको क्या है, आप सुने, सुनने के बाद क्या है, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर किसी मस्जिद के अंदर खवातीन का एहतमाम है तो खवातीन भी क्या है, अपनी मस्जिदों के अंदर आए, तरावी की नमाज पढ़ें। तरावी की नमाज पढ़ने के बाद क्या है, वो जो दुरूस का एहतमाम होता है, दुरूस सुने, उसमें गौर व फिक्र करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। एक मुसलमान को रमजान का इस्तकबाल इस तरह भी करनी चाहिए। इसी तरीके से बाद लोगों के यहाँ ये बात देखने में आती है कि रमजान से एक दिन दो दिन पहले वो क्या करते हैं, वो रोजा रखते हैं। किस नियत से रोजा रखते हैं, इस नियत से रोजा रखते हैं पता नहीं, हो सकता है आज पहला रमजान हो, आज पहला रमजान हो, अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो क्या है, हमारा एक रोजा कम हो जाएगा, शक की बिना पर रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। कहा देखो, जिसने शक का रोजा रखा उसने अबुल कासिम का इनकार किया। फक़द आसा अबुल कासिम, अबुल कासिम कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने क्या है, अबुल कासिम का इनकार किया। तो हमें भी क्या है, शक का रोजा नहीं रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सूमू लिरुयतिकुम व अफ्तिरू सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही। कहा कि देखो, चांद देख करके रोजा शुरू करो, जब चांद जो है देखो तब रोजा इफ्तार करो। फ़इन गुम्मा अलैकुम, लेकिन अगर अल्लाह न करे तुम्हारे ऊपर
बदली छा जाए, आसमान में बदली हो जाए, बादल छा जाए, तो ऐसे मौके पर क्या करो, 30 दिन पूरे करो। क्योंकि मालूम है अरबी का जो महीना होता है वो या तो 29 का होता है या 30 का होता है, ना 28 का होता है ना 31 का होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 30 दिन पूरे करो। शाबान का महीना चल रहा है, 29वीं तारीख है, बदली है, चांद नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगले दिन रोजा नहीं रखेंगे। हम ये समझेंगे कि आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख होगी। 30 तारीख को चांद दिखे या ना दिखे, हमें अगले दिन क्या है, रोजा रखना है। 30 तारीख की जो रात होगी मगरिब के बाद क्या है, हमें तरावी का क्या है, एहतमाम करना है। तो इस तरीके से एक मोमिन को और मुसलमान को क्या है, रमजान का इस्तेकबाल करना चाहिए। एक चीज और जिससे हम लोग गफलत बरतते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, जब कारोबार शुरू करनी होती है, जब कोई दुनियावी काम होता है, जब और कोई मसला होता है, तो हम क्या करते हैं, लोगों से पूछते हैं, मशवरे लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन जब इबादत का मसला होता है, जब दीन का मसला होता है, जब अकीदे का मसला होता है, जब ईमान का मसला होता है, तो हम बस सारी चीजें भूल जाते हैं। जैसे लोग चल रहे हैं वैसे चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रमजान आने से पहले पहले हमें रमजान के मसाइल को सीखने की जरूरत है। रमजान किस तरह गुजारे, क्या क्या चीजें हमें करनी है, किन किन चीजों से रोजा टूट जाता है, क्या क्या चीजें मना है, क्या क्या चीजें हमें करना अच्छा है, क्या क्या मसनून अमाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहरी कब खानी है, इफ्तार कब करनी है, तरावी की नमाज कब पढ़नी है, दुआओं का एहतमाम कैसे करना है, दुआएं कैसे मांगनी है। अगर रोजे की हालत में कोई हमें गाली गुलूज कर रहा है, कोई हमें लानो तायन कर रहा है, हमें उसका जवाब कैसे देना है, घर वालों को कैसे रखना है, ये तमाम चीजें जो एक मोमिन होता है, एक मुसलमान होता है, उसके दिल के अंदर तड़प होती है कि काश कोई हमें मिल जाता कि हम उसको सीख लेते उससे बैठ करके कि रमजान का महीना हमें कैसे गुजारनी चाहिए। ये कौन करता है, ये मोमिन और मुसलमान करता है, ना कि जो दुनियादार बंदा है जिसके अंदर सिर्फ दुनियादारी होती है, वो दुनियादारी उसके अंदर होती है, वो दुनिया के धारे में, दुनिया के बहाव में बहता चला जाता है। ऐसा इंसान इन सब चीजों के पीछे नहीं रहता है। कौन सा इंसान रहता है, ऐसा इंसान रहता है जिसको फिक्र होती है, ऐसा ना हो मेरी इबादत एक महीने की खराब हो जाए, ऐसा ना हो जो हम रोजा रख रहे हैं भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसा ना हो कहीं कुछ कमी हो जाए, हमको सिर्फ भूख प्यास ही मिले, ऐसा ना हो हम रात को शब बेदारी करते हैं, जागते हैं, ऐसा ना हो कि हम उसमें कोई गलत अमल करें या गलत तरीके से उसको हम जागे और हमारा पूरा रात का जागना सिर्फ जागना हो, हमारे लिए कोई नेकी और सवाब ना हो। ये कौन करता है, मोमिन और मुसलमान करता है, जिसको अल्लाह से लगाव होता है, कुरान से लगाव होता है, रसूल से मोहब्बत होती है, अपनी आखिरत बनाने की फिक्र होती है, कब्र के अंदर वो आराम चाहता है, वो चाहता है कि जब मैं दुनिया से जाऊं भले ही कोई मेरे पीछे दुआएं करे ना करे, लेकिन इतने अमल जरूर मेरे पास हो जाए कि मेरे मरने के बाद मुझे क्या है, सवाब मिलता रहे, मेरे लिए सदका जारिया रहे। ये कौन करता है, ये एक मोमिन और मुसलमान करता है। दुनियादार बंदा ऐसा नहीं करता है। दुनियादार बंदे को तो सिर्फ नाम चाहिए, नमूद चाहिए, शोहरत चाहिए, वो दुनिया के धारे में बैठा हुआ चला जाता है। उसको ये मतलब नहीं होती है रोजा हमें कैसे रखना है, तरावी हमें कैसे पढ़नी है, दुरूद हमें कैसे सुनना है, रात हमें कैसे गुजारनी है, तिजारत हमें कैसे करनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे तो सिर्फ क्या चाहिए, दुनिया में अपना मफाद चाहिए, चाहे पैसे की शक्ल में, चाहे शोहरत की शक्ल में, चाहे नामो नमूद की शक्ल में, चाहे ओहदा और मनसब की शक्ल में, चाहे किसी शक्ल में। तो मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस तौफीक पर कि आपको रमजानुल मुबारक का एक मर्तबा महीना मिल रहा है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नेकियां करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन।